Dear students, how are you? Fine. So now we are going to solve example 3. तो बच्चों अभी हम देखने वाले हैं example 3. Okay. Now you see angle POQ, angle POQ, angle QOR, QOR, angle QOR, angle SOR, angle SOR, angle POS, angle POS is 360 degree. Right. It is true logically also, because we know that complete angle is 360 degree, and here if we add all these angles we are going to get complete angle. So logically it is true, but we have to prove this. Okay. So for this we have to make a small construction, and the construction says that, you see here straight line we don't have anywhere. Okay, so first thing is that we have to make a straight line. So straight line can be made either by making a ray here, or it can be made by making a ray here, or it can be made by making a ray here. So there are three options. I am going to take these options. Okay, so my dear student, I am going to draw a ray. The name you can give PQRST. Okay, so what is the construction? Draw a ray OT. Okay, my dear students, opposite of OQ, if you can do like this. So we have to draw a ray OT opposite of the ray OQ. You can draw like this also, or you can draw of this like this also, but you have to draw any one. Okay. ओके, सो आई एम रबिंग दिस. तो आप कहीं पे भी रे बना सकते हैं, आपके पास तीन ऑप्शन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स. नाउ यू सी, नाउ डोंट यू फील TOQ is a line and OP is a ray. So I am talking about TOQ is a line and OP is a ray. So don't you feel this angle and this angle together constitutes a linear pair? So you can write angle POQ and POT equal to 180 degree. So you can write what? Linear pair. Is it clear? You can call this as number 1. Now if you see the downward angle, we have three angles. We have three angles. Let me mark it cross. Don't you feel the sum of this three angle will be 180 degree? Because these three angles are made over the line, and you know that this total angle is how much, my dear student? Come on, 180 degree. Okay, तो यानी ये तीनों एंगल को प्लस करके मेरे को मिलेगा 180 डिग्री, बिकॉज ये तीनों एंगल एक लाइन के नीचे बने हैं, एक लाइन को यूज़ करके बने हैं. तो व्हाट कैन यू से, माय डियर स्टूडेंट? यू कैन से एंगल. बताइए पहले एंगल का नाम बताइए, क्या है? TOS. दूसरा का नाम बताइए SOR. तीसरा का नाम बताइए ROQ इक्वल टू 180 degree. So इसको you cannot say linear pair because we have three angles. So you can say what? Angles in a straight line. Okay, or else sometimes in short if you want you can write straight line angle. Anyone you can write. Okay, so this you can call as number 2. Now you do 1 plus 2, add both the things. So you will be getting POQ plus POT plus TOS plus SOR plus ROQ equal to 180 plus 180. Okay,
व्हेन आई से ऐड, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन का LHS को आपको ऐड करना है, ये LHS और ये LHS, और ये RHS और ये RHS को ऐड करना है। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ, सपोज मान लो 10 = 20, ये है नहीं, मान लीजिए दिस इज़ 1, मैं बोलता हूँ 5 = 3, नंबर 2, आई से 1 + 2, यानी both the LHS should be added. So you are going to get 10 + 5, both the RHS should be added. You can write 20 + 3. So this becomes 15 and this becomes 23. This is the meaning of addition. तो बच्चों एडिशन से घबराना मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, दोनों राइट हैंड साइड को ऐड करना है। नाउ लेट अस राइट दिस वंस अगेन, POQ. This is POQ. POT, where is POT? POT. So let me write angle POT plus angle TOS. TOS. This is TOS plus angle SOR. SOR plus angle ROQ. 180 plus 180. It is 360 degree. Okay, you can put a bracket here. Now this becomes POQ. Okay, when you add this to angle POT and TOS, POT and TOS, what you will be getting? You will be getting POS. POS plus SOR plus ROQ equal to 360 degree. तो बच्चों हमने प्रूव कर दिया, लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव। इज इट क्लियर? सो मच इजी नो? सपोज आई मेक ए रे ओवर हियर। अब मान लेते हैं आपने ऐसे करके रे बनाया, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट दिस फास्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। मैंने यहाँ पे एक रे बनाया, आप चाहे तो रे को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाइए, समझेंगे तो टेंशन नहीं होगा, राइट। नाउ आई मेड ए रे लाइक दिस। अभी आप क्या करोगे? नाउ यू सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों को मिलाएंगे, अगेन यू विल गेट 180 डिग्री एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, 1 + 2 if you do, you will be getting TOR, POQ, QOR, ROS, SOT, TOP. You will get a complete angle, right? आपको क्या करना है, ये TOP को और TOS को पेस्ट करके POS बनाना है। So you will be getting POS, POQ, QOR, ROS. तो बच्चों समझ में आ गया? आप चाहे तो रे को ऐसा भी बना सकते हैं। समझ जाइए, समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताइए आप लोग कैसे करेंगे? नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, सो वी हैव लीनियर पेयर ओवर हियर, POS प्लस PO, इसका नाम मैं देता हूँ T, POT इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 1। नेक्स्ट TOQ प्लस QOR प्लस ROS इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी आप दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2, ओके। व्हाट यू विल बी गेटिंग? कम ऑन टेल मी व्हाट यू विल बी गेटिंग? POT, TOQ, QOR, ROS, SOP. You have to paste two angle. POT plus TOQ के जगह पे आपको लिखना है एंगल POQ. Am I right? So then you will be having POQ, QOT, ROS, SOP equal to 360 degree, hence proved. Yani there are 3 ways of doing this question. Is it clear? You can prefer any one ways. Alright, clear? Okay. Now dear students, we are going to solve exercise 6.1 and first question. Now see the figure. The figure is clear. Now AOC plus BOE equal to 70 degree. AOC this angle, BOE this angle. Okay, ये दोनों एंगल को मिला के it is 70 degree. Okay, BOD equal to 40 degree. This angle alone is 40 degree. Is it clear? So what is the logic? Tell me. Now sum of these two angle is
70 degree. Clear? If this is 40, this angle will be 40. This angle will be 40. You can call it as vertically opposite angle. Sum is 70. This alone is 40. So this angle will be 70 minus 40, which is 30 degree. Is it clear? Now the sum of these three angle is 180 degree. You can call as angle in a straight line. So you can hunt this angle. Okay, COE. See, you want reflex angle COE. So if this angle you got it, then this angle is the reflex angle. आप इस एंगल को बोल सकते हो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल COE and the formula is 360 minus angle COE. Is it clear? What is the first track? From here you will jump here, vertically opposite angle. Sum of these two angle is 70 degree. So if this is 40, this has to be 30 degree. Okay, and you will hunt this angle in a straight line. And after hunting this angle, you can hunt the reflex angle. Reflex angle को बोलते हैं back angle. For example बच्चों, if suppose this is AOB, तो ये जो एंगल है बच्चों, इसका नाम है एंगल AOB. ठीक है, ये जो एंगल है बच्चों, इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOE. Is it clear? Now you see, total angle is 360 degree. Is it clear? So from 360 degree, if you remove this angle AOB, you will get this back angle. So what is the formula of back angle? You can call it as total is 360 degree, and from this you will remove this part, which is angle AOB. ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल AOE का फॉर्मूला क्या है? 360 माइनस AOB, सॉरी दिस नॉट AOE, AOB. उसी तरह से रिफ्लेक्स X का क्या फॉर्मूला होगा? बोलिए 360 माइनस X. रिफ्लेक्स Y का क्या फॉर्मूला होगा? 360 माइनस Y. सो व्हेनेवर आई से रिफ्लेक्स मीन्स दिस एंगल. याद रखिए बच्चों, रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल को बोलते हैं, और ये एंगल मान लो X है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे? 360 माइनस X करके निकालोगे. इज इट क्लियर? बिकॉज टोटल इज 360 डिग्री. 360 में से X को हटा देंगे तो ये निकल जाएगा. तो रिफ्लेक्स से घबराना मत. रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक एंगल, एंड द फॉर्मूला इज, चलिए ऐसा करते हैं ना, आप इसको मान लीजिए फ्रंट एंगल और इसको मान लीजिए बैक एंगल. तो बैक एंगल कैसे निकलेगा? 360 माइनस फ्रंट एंगल, ये बैक एंगल निकल जाएगा. फ्रंट एंगल कैसे निकलेगा? पूरा 360 माइनस बैक एंगल. ओके, दिस इज द बेसिक लॉजिक. इसी बैक एंगल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स. इज इट क्लियर? ओके, अब ये सम को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट. मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आप बताते रहिए, मैं लिखता रहता हूँ. पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल से दैट एंगल DOB, एंगल DOB equal to angle AOC. You will call it as vertically opposite angle. Is it clear, my dear students? Now, so from this you will get angle AOC as 40 degree. Is it clear? तुम इसको आप चाहिए तो आप फिगर में ऐसे करके एरो दे सकते हैं. ठीक है बच्चों, और ऐसा करिए, व्हाट इज गिवन आप उसको रेड कलर में लिखिए. 40 डिग्री को रेड कलर में लिखिए, और बाकी आप इस एंगल से जो बाकी एंगल निकाल रहे हो उसको आप ब्लू में लिखिए, तो क्लियर हो जाएगा. तो ये 40 से आपने निकाला ये 40. इज इट क्लियर? अब ये 40 से आपने क्या निकाला? ये 30. ऐसे करके आप एरो दीजिए, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंगल किससे निकला है. इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं इसको मीट देता हूँ ताकि फिगर क्लियर हो जाए. ठीक है, इसको मीट देता हूँ, बिकॉज फिगर जितना क्लियर होगा आपको समझने में उतना आराम होगा. मैंने मीट दिया. ठीक है बच्चों, तो 40 से पहले मैंने क्या निकाला? 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन फ्रॉम दिस 40 आई गॉट दिस 30 डिग्री, विच इज
what? The sum of these two angles is 70 degree. From that I got 30 degree, and from this 30 degree I will hunt this angle in a straight line, and from this angle I will hunt this angle, that is reflex angle. तो सारा ट्रैक मैंने इसमें दे दिया है. चलिए बच्चों आप फटाफट लिखते हैं. तो AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री. अभी आप क्या लिखेंगे बोलिए? नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. AOC कितना दिया है देखिए ऊपर में 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री. तो बच्चों BOE कितना आएगा बताइए 70 माइनस 40. तो यू विल बी गेटिंग BOE इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर? अब नेक्स्ट बताइए क्या करेंगे. नाउ यू कैन राइट. जब भी शुरू करते हैं नाउ लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसको आप लिख देंगे B. यू कॉल दिस एज स्ट्रेट. मैंने शॉर्टकट में लिखा बच्चों स्ट्रेट लाइन एंगल. ठीक है. नो व्हाट इज AOC? यू नो इट 40 डिग्री. व्हाट इज COE? वी डोंट नो. व्हाट इज EOB? 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है. नाउ व्हाट इज एंगल COE? सो COE इक्वल टू 40 प्लस 30 70. 70 वहाँ जाएगा तो माइनस 70. 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री. सो माय डियर स्टूडेंट वी गॉट दिस एज 110 डिग्री. तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? टेल मी. रिफ्लेक्स एंगल COE मैंने बताया था ना कैसे लिखेंगे. 360 माइनस एंगल COE. ठीक है बच्चों. 360 माइनस COE कितना दिया देखिए 110 डिग्री. तो माइनस करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 250 डिग्री. तो ये हो गया क्वेश्चन बस. तो वंस अगेन स्मॉल रिवीजन. यहाँ से जंप मारेंगे इधर कौन से फ्लाइट से? वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहाँ से जंप मारेंगे इधर कौन से फ्लाइट से? ये दोनों मिला के 70 डिग्री है. तो 70 माइनस 40 30. फिर यहाँ से जंप मारेंगे इधर एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन. फिर आपको ये एंगल मिल गया. यहाँ से नीचे आ जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल. तो पहला आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा आ जाता है सम, तीसरा आता है एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, और फोर्थ आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल का लॉजिक. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से आराम से आप लोग कर सकते हैं. चलिए फटाफट लिखिए और इस तरह से एरो भी दीजिए. ओके फाइन गुड. So my dear students, now we are going to solve question number 2. See the figure. Figure is heart here. Figure is everything. Now, if you see the figure, this angle is 90 degree. ये जो एंगल दिया है ये है 90 डिग्री. क्लियर है बच्चों? ओके. और बताइए. और एंगल A और एंगल B का रेशियो दिया है. तो व्हाट इज एंगल A? आई कैन कॉल इट एज एंगल A is 2x. Whenever ratio is given, you can represent angle like this, and angle B is 3x. x की जगह आप y, t, u, v कुछ भी यूज़ कर सकते हो. Is it clear? Now if you see, this is a straight line. Am I right? 3 angles are formed above. So this angle together constitutes 180 degree, and 2 angles are formed below. This angle together constitutes 180 डिग्री. ठीक है बच्चों. नीचे वाले ये दोनों एंगल को बोल सकते हैं लीनियर पेयर, और ऊपर वाले ये 3 एंगल को बोल सकते हैं एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन एंगल. ठीक है. अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिखूँगा. मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ. A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल इन ए straight line. Is it clear? So what is A? A is 2x plus 3x plus 90 equal to 180 degree. Add करिए इन दोनों को. This becomes 5x plus 90 equal to 180 degree. So this is 5x. 90 उस तरफ जाएगा 180 minus 90 which is 90. तो x equal to
90/5, so 5 1s are 5, so you are getting x equal to 18. Is it clear? Now with the help of x you can hunt what is a and what is b. So what is a? It is given clearly 2x. Okay, so you can write 2 into 18. 2 into 18 is 36. What is b man? What is b? 3x. come on आगे देखिए, 3 into 18. okay, 3 into 18 is 54. चलिए आपको निकालना है c कहाँ पे है? c नीचे में है. एम आई राइट और रॉन्ग? अब बच्चों ध्यान से देखिए, मैं इसको मीट दूँ तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसका काम ख़त्म, अब इसको मीट दिया जाए. ठीक है बच्चों, अब देखिए c को यूज़ करके कैन यू मेक एन इक्वेशन हियर? c इज़ हियर, c इज़ दिस एंगल. कम ऑन टेल मी, डोंट यू फील BC forms a linear pair? MON is a ray. तो क्या लिखेंगे? नो नॉट ए रे, MON is a line and OX is a ray. Therefore you can say that angle B, simply write B plus C equal to 180 degree. This is linear pair. B you have found out. What is it? It is 54 plus C 180 degree. तो C क्या आ जाएगा बच्चों? 180 minus 54. तो 180 minus 54 कितना आ जाएगा बताइए? 126 degree. तो C you got as 126 degree. Clear? So what is the first logic? Hunt A, hunt B using angle in a straight line. B plus C equal to 180 degree because linear pair. ध्यान से देखिए, ये लाइन है, ठीक है, आप लोग फिगर बना देना बच्चों. तो ये लाइन है और देखिए मैं बनाता हूँ एक बार. दिस इज द लाइन, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज O, दिस इज B, दिस इज C. अब देख लीजिए ये बन गया लीनियर पेयर. लीनियर पेयर यानी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए. दिस इज लीनियर पेयर. ओके, आई एम ड्राइंग एंगल लाइन लाइक दिस. नाउ दिस इज अ रे, so this is the sum of these two angle is 180 degree. So for linear pair you should need a line and a ray on it. एक लाइन होना चाहिए और लाइन के ऊपर में एक रे होना चाहिए बच्चों, तब ये दोनों एंगल को मिला के आप बोल सकते हैं लीनियर पेयर. अगर आप बोलेंगे सर 3 एंगल आ जाता है तो बच्चों ये लीनियर पेयर बन जाता है एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन. क्या बन जाता है? एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन. इज इट क्लियर? चलिए बढ़िया से लिख दीजिए इसको अभी. Students, now we are into question number 3. Okay, so I hope you are enjoying lines and angles. Correct? तो lines and angles में 2-3 कॉन्सेप्ट ही है जिसको बार बार लगाना है. एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा है लीनियर पेयर और तीसरा है एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन. सो दिस लॉजिक यू हैव टू रिपीटेडली यूज. ओके, नाउ यू सी PQR. वेयर इज PQR? PQR, this angle and PRQ. PRQ, I think क्वेश्चन में कुछ PQR equal to PRQ. Sorry my dear student, PQR is this angle and PRQ is this angle. So these two angles are equal. So you have to prove that this angle PQS, ये एंगल और ये एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. यू हैव टू प्रूव दैट. इज इट क्लियर? सो हाउ कैन यू प्रूव इट? टेल मी. सी, लेट अस हैव ए लॉजिक फर्स्ट. लॉजिक लगाते हैं. मान लीजिए ये 20 है और ये 20 है. ठीक है बच्चों. नाउ इफ़ यू सी SQR is a straight line and QP is a ray. So this two angles sum is 180 degree, linear pair. That means if this is 20, how much this will be? This angle is 160 degree. Similarly here also if you see, this is a straight line and this is a ray RP on it. Okay, so sum of these two angle is 180 degree.
So if this is 20, this has to be 160. Now you see, this is 160 and this is 160. तो लॉजिकली बच्चों समझ में आ गया, ठीक है, ये 20 तो ये 160, ये 20 तो ये 160. So these two angles are equal. Now we have to prove this. Let us see how we can prove this. So the technique is, first I am going to see, let PQR equal to PRQ equal to T. I am simply giving the name T, or you name it as X. Is it clear? Now, ठीक है बच्चों, तो बोलेंगे SQR, SQR, और सिंपली यू कैन से SR, सीधा बोल दीजिए SR. क्या है SR? SR is a line and QP is a ray. So what can you say? Angle SQP plus angle PQR equal to 180 degree. You can call this as LP. LP and a linear pair. Okay, now what is PQR? PQR is X. Otherwise we do one thing, we no need of applying this. So directly we can do like this. Now apply here QT. What can you say? QT is a line and बोलिए RP क्या है बच्चों? RP is a ray. Is it clear? So what can you say? Angle QRP plus angle PRT equal to 180 degree. So what is this, my dear student? Linear pair. So this is 2 and this is 1. Okay, now you can say from 1 and 2. ठीक है, 1 and 2 को ध्यान से देखिए. डोंट यू फील दोनों का RHS सेम है. So whenever RHS are equal, we can say that LHS must be equal. So what is LHS here? This is SQP PQR equal to QRP plus PRT. Is it clear? Now PQR, this angle PQR, okay, is equal to PRQ. Where is PRQ? This angle is PRQ. आप QRP भी बोल सकते हैं, PRQ भी बोल सकते हैं. ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी दिस इज 20, दिस इज 20, सो दे गेट कैंसल्ड. सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? SQP इक्वल टू PRT. इक्वल देखिए, SQP इक्वल टू PRT. सो लाइक दैट यू कैन प्रूव दिस. दिस इज़ वेरी इजी. ओके, अभी मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ ज्योमेट्री को सॉल्व कैसे करना है. सी, बोलने के लिए ये फिगर पूरा कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था ये सारे फिगर को एक साथ नहीं देखना है. सपोज यू आर अप्लाइंग लीनियर पेयर हियर, यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट. आप ये पूरे पार्ट को भूल जाइए बच्चों. अब ये पार्ट है ही नहीं आपके लिए, है ना, है ही नहीं. आप बताइए क्या बोलेंगे? SR is a line, QP is a ray, so these two forms linear pair. तो यानी आपको ये पूरे फिगर में खाली इसी पार्ट को देखना है. समझ आया बच्चों? अभी मैंने क्या किया, अब मेरे को यहाँ पे लगाना है लीनियर पेयर. अब मैंने इसको बंद कर दिया, ढक दिया. तो बताइए अब क्या लिखेंगे? QT is a line, RP is a ray, तो सम ऑफ दिस टू एंगल इज़ 180 डिग्री. तो बच्चों यानी इसी फिगर के अंदर में आपको दो फिगर लगाना है. एक फिगर ऐसा है, दिस इज Q, दिस इज S, दिस इज R एंड दिस इज P. दिस टू इज़ 180 डिग्री. और यहाँ पे क्या लगाएंगे बोलिए? यहाँ पे ओके, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज P एंड दिस इज T. यानी you have to see this figure as this ones and as this ones. Don't always see the complete figure. जैसे आप लोग रोड में चलते हो भाई, करेक्ट,
तो आप क्या करते हो, खाली ट्रैफिक को देखते हो और अपना डिसीजन को लेते हो, करेक्ट। यू डजेंट सी लेफ्ट, यू डजेंट सी राइट, मतलब यू डोंट सी एवरीवेयर, यू ओनली सी द ट्रैफिक एंड देन मूव। उसी तरह से आपको ये सारा फिगर नहीं देखना है, यू नीड नॉट सी द एंटायर फिगर, you see only the point which you want. Is it clear? Okay my dear students, now please write it down.